Welcome back. You're watching NewsX. My name is Vineet. One of the biggest success stories of Operation Sindoor was the Indian Air Force strike on Lashkar-e-Taiba camp in Muridke. The headquarters of the LET, formed by Hafiz Saeed, called Markaz, had become a terror training facility. Osama bin Laden is said to have helped build the Muridke seminary. This was the same camp where Ajmal Kasab and David Headley, two key men behind the 26/11 Mumbai terror attacks, had gotten their training. This was the same place from where the 26/11 terror attack was planned and hatched. It was taken, or rather it has taken 18 years for India to hit this terror headquarters. What it means, let's understand from survivors and heroes of 26/11. But before that, let me in fact also ask my production control room to focus on an article from 2013 where it can be clearly seen as to where David Coleman Headley, who was sentenced to 35 years for plotting against 26/11, and another place in Denmark, talks about receiving training from Pakistan in Muridke. In fact, he goes on to say that he was trained at Muridke, and the members in fact helped him in surveillance, in tactical training, on how to in fact carry out multiple assaults and other important training tools which are necessary to become a terrorist. He was in fact pretty open about admitting that he was instructed by a Lashkar member in Pakistan to conduct surveillance of the Copenhagen and Aarhus offices of the Danish newspaper. In fact, a ploy and a plot which did not transpire, but this is pretty much confirmed, and this is pretty much the reason why India targeted Muridke. And Lashkar, of course, a proscribed terrorist organization whose headquarters have been recently bombed by India. And this is an article from about 12 years ago, more than 12 years ago, where Headley talks about getting help and training from Lashkar-e-Taiba in Muridke. Alright, joining us to talk more about this is Mr. Ujjwal Nikam. He is a 26/11 Special Public Prosecutor. Sanjay Kathar, 26/11 survivor, also with us on the program. Sanjay, I hope you can hear me. Thank you for joining us. Sanjay? Yeah, I can hear you. Some network issues there, but I can hear you. Yeah, Sanjay, thank you. Thank you so much for joining us. Well, how are you feeling today, knowing that, 26/11 was a long time ago, but the fact of the matter is that justice has been delayed, but it's not been denied in this case. Yeah, I'm feeling good about it. I've seen the news, today's news. Hello? Go on. I can hear you. Please go on. So, can you just come again? What's your question regarding? How are you feeling today, Sanjay? It's the same question that you started to answer. I am feeling good about it. The justice has been delayed, but it has been given by our judiciary. So, I am feeling good about it. And what did you make of Operation Sindoor and how Pakistan has been decimated for nurturing and harboring terrorism? Hello? Sanjay, if you can hear me. Okay, there seems to be a problem with that connection. We'll sort that out momentarily. Sanjay is one of the survivors from 26/11. Of course, very eerie memories for a lot of people from that day. And 26/11 was a nightmare for India. 166 people were killed. And this attack recently on Pakistan goes on to tell those people who lost their loved ones that this revenge, this retaliation was also for you. This was also for the people you lost, and this is also for those people who lost someone. Alright, at this point in time, Mr. Hemant Bhavnkar, former Mumbai Police Inspector, is joining us on the program. Sir, appreciate you being here with us. How do you feel now, knowing that the Lashkar-e-Taiba's headquarters in Muridke has been destroyed in Operation Sindoor?
First of all, I would like to congratulate Indian Army who have destroyed the camp Muridke, and I am really feeling very happy for this attack. And I will say that more camps should be destroyed. Target must be fixed, and that should be destroyed. This is our aim in future. This should be our aim in future. And your heroic actions led to Ajmal Kasab being nabbed alive. What are your memories of that moment, of that day, of that night? That night, I was performing duty with Mr. Tukaram Omble, Sanjay Govilkar, Bhaskar Kadam at Girgaon Chopati. We were 16 people. We got message from control room at 12:15 that two terrorists are in a Skoda car and they are approaching towards Girgaon Chopati. We have deployed. We made two teams. Sanjay Govilkar, Tukaram Omble, and six our police men stood behind the barricades, and myself, Bhaskar Kadam, and his detection staff stood near road divider. That car approached at the place at 12:30. We instructed them to surrender, but they did not pay attention, and the driver, that is Abu Ismail, was driving that vehicle, drove the car very fast towards us and tried to escape from the place by taking U-turn. But in that process, the car dented at speed breaker at road divider, and it stopped. Thereafter, we asked them to surrender, but they did not pay attention. And meantime, Abu Ismail fired at us. In that retaliation, Bhaskar Kadam fired from his pistol at Abu Ismail, and I also fired 3 rounds at him from the rear glass of the car. At that time, Kasab was sitting next to driver's seat, pretended to be surrendered by putting his hands up, and thereafter he opened the door and got down from the vehicle. At the same time, Tukaram Omble and Sanjay Govilkar and the rest team ran towards him to nab him. Meantime, he took out the AK-47 from the jacket where he has hidden that rifle and opened fire. All bullet shots were hit Tukaram Omble. In spite of that, he did not lose the grip over Kasab, and that is why we could got Kasab alive. It is only the patriotic work of our Tukaram Omble ji who sacrificed his life there and saved us there. All right, well, we have carried out Operation Sindoor as 2611 mastermind. Tahawwur Rana is being interrogated by the NIA. Do you think that this would be the final nail in the coffin in exposing Pakistan and ISI's role in sponsoring terrorism? I also congratulate NIA team to bring Tahawwur Rana from USA Supreme Court, and definitely our team is capable of taking out the material evidence from Tahawwur Rana, which will prove the nexus of the Pakistani terror camps and Pakistan government in 2611 terror attack. And so we sent dossiers after dossiers and now provided proof of Pakistan's terror activities to the whole world. Yet, why do you think the world seems to be reluctant to calling out Pakistan's sponsoring of groups like the LET and the Jaish-e-Mohammed? I will just request the world to stand by the truth. India is presenting dossiers, evidence against the terrorists and against the Pakistan, and I would like to request world to believe what we are submitting, we are bringing in front of world. So it is a request from our side to the world that they should believe India. Prime Minister Modi has said that every terror attack in India will now be an act of war and will be responded with similar force. How do you feel about this announcement? This announcement is
definitely deterrent the Pakistan and terror camps taking shelter in that country, and it is important to send message to those who are acting against the India, and it will definitely help in future. And so, what is your message to the armed forces who have taken up this war on terror and given a never seen before response through surgical strikes, be it Balakot and now Operation Sindoor? This announcement is definitely deterrent the Pakistan and terror camps taking shelter in that country, and it is important to send message to those who are acting against the India, and it will definitely help in future. Sir, appreciate you speaking with us. Thank you so much. All right, Surinder Kumar, former NSG commando, is also joining us on the broadcast. Surinder जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. भारत ने पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकी अड्डे डिस्ट्रॉय किए हैं ऑपरेशन सिंदूर में. वहाँ पे लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स था मुरीदके में, और बाकी भावलपुर में भी जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स था. कैसा लगा आपको ये आक्रमण देख के? जैसे सवेरे उठे तो ये जो सूचना मिली कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर जो है ना बर्बाद कर दिया, और जो भारतीय सेना ने जिस तरीके से मिसाइलों के साथ हमला किया, वो तो खुशी का ठिकाना नहीं था. मैं नहीं, मेरे पूरे परिवार को जो है ना बहुत खुशी हुई, और क्योंकि मैं खुद भी उसका विक्टिम रहा हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारा, धर्म पूछ के मारा, कपड़े उतरवा के मारा, और जो है ना कलमा पढ़वा के मारा, तो वो 26/11/2 था. 26/11 में भी इसी तरीके की घटनाएं हुई थी. वहां भी लोगों को धर्म पूछ के मारा गया था. पहले तो टेरर जब अटैक किया तो अंधाधुंध अटैक किया, पर बाद में जब आतंकवादी स्थापित हो गए थे होटलों के अंदर, तो उन्होंने धर्म पूछ के मारा. ये बातें कई सारे लोगों ने हम लोगों को बताया था पूछने में, अब भाई ऐसे ऐसे हुआ, 1-2 बंदा जो जिंदा हमने निकाला. तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, और मैं इस बात के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी जो ना सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ. आपकी बहादुरी ने उस दिन 600 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई. आपको क्या याद है उस भयानक घड़ी के बारे में? सेक्शन कमांडर और वेपन टैक्टिक्स के बहुत सारे कोर्स किए हुए, मतलब ये लगा हुआ PhD टाइप किया हुआ मैं. तो मैंने अपनी सूझबूझ अपनी टीम को बोला कि जो बाहर से आदेश आ रहा, हम इस आदेश के ऊपर अमल नहीं करेंगे, थोड़ा रुक के करते. तो हमने फिर अपने तरीके से शुरू किया, वहां से करा था. फिर हमने मेजर साहब की बॉडी मिलने के बाद हमने सूचना दी, बाहर बॉडी को भेजा. तब एक समस्या और हमारे लिए होगी, उनके पास पहले इंटरनेट से सब तरीकों से पता चल रहा था, रेडियो सेट भी हमारे चले गए, तो अब तो लड़ाई लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है. तो हमने फिर अपने तरीके से हमने कहा एक तरफ से हम होटल को सर्च करेंगे. तो हमने ओल्ड न्यू ट्रेंड था तो कर लिया था, ओल्ड का कर लिया था 6ठी 7वीं मंजिल. तो फिर हम 4थी 3री 5वीं मंजिल किया हमने. अब हम बीच में छोड़ के जा रहे थे तो आतंकवादी इधर से इधर निकल जाते, इधर से इधर. तो जब एक तरफा किया, 4थी मंजिल में हमारी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़. उस समय लगातार निकालते रहे, छोटे बच्चों को भी निकाला, माता बहनों को भी हमने निकाला, बुजुर्गों को भी निकाला. अलग अलग देश के लोग भी थे, हिंदुस्तान के भी थे. कई लोगों को भाषा की भी प्रॉब्लम होती, कोई अंग्रेजी बोलता था, हम लोगों को इंग्लिश कम आती है. और तो उसके बाद 4थी मंजिल में हमारी मुठभेड़ हुई आतंकवादियों के साथ. उससे पहले वो बार बार भाग रहे थे मुठभेड़ करके, फायरिंग करके. अब जब हुई तो वहां हमने एक आतंकवादी को वहीं दबोच लिया. वहां जब दबोच लिया तो उसके साथ जो गोलियां लगी, उसमें हमने वहां तंदूर था, उस तंदूर के अंदर जो है ना उसको सीधा ही झोंक दिया जिंदा. इतना गुस्सा था हमारे अंदर, हमने पूछने की कोशिश की, पूछने को बताने को नहीं, वो जिस नशे टाइप की हालत में थे. तो गोलियां तो उसके साथी, दोबारा ये भी था अटैक होने का, तो उसमें हमारे साथी राजवीर लांबा के हाथ वगैरह भी उस पे जल गए थे, मुंह वगैरह जला वहां पर उनका आग में. और उसको हमने डायरेक्ट खिड़की से, क्योंकि हमको दबाया जाता है, ह्यूमन राइट का जो ना कानून हमारे पे लागू, आतंकवादियों पर लागू नहीं है. पर इतना गुस्सा था, जो आप भी अगर उसको देखते थे यही काम करते जो सुरिंदर सिंह कमांडो ने किया, जिंदा जला उसको खिड़की से बाहर फेंकने का काम किया. और उसमें खिड़की से भी मैंने जब वो मेरा वीडियो भी फोटो भी वायरल हुआ था, ऐसे हाथ के खिड़की से निकाल कर मैंने निशान से. सर, पाकिस्तान अभी भी हाफिज सईद और ज़कीर उल रहमान लखवी और बाकी जो आतंकवादी हैं उनको शरण देता है, पर दुनिया
इसको मानने से, इसको स्वीकार करने से इनकार करती है। आपको क्यों लगता है कि ये जो पाकिस्तान का जो दोगलापन है, इसको दुनिया क्यों नहीं पहचानती है? अब जो आतंकवादी और सेना, चोर और मान लो सिपाही दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो जनता का क्या भला होगा। तो उसके तहत अब आतंकवादियों के ऊपर ये हावी फोटो आपने देखे होंगे। अब जो आतंकवादी मारे गए उसके अंदर वीआईपी लाइन के अंदर इनके जो आतंकवादी खड़े हैं, और वो आतंकवादियों के जनाजे के अंदर पाकिस्तान की फौज खड़ी है। पाकिस्तान का झंडा आतंकवादियों के जनाजे के ऊपर, उनके ताबूतों के ऊपर, उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ आतंकवादियों को जो है ना, उनको कब्र में जो है ना गाड़ा जा रहा है। और ये तो हिंदुस्तान ने जो है ना उनको कब्र में गाड़ने का काम किया। वो आतंकवादी तो पाकिस्तान के अंदर मेहमान की तरह रहते हैं। ये अमेरिका भी भले बातें जानता हो, जिस तरीके से अमेरिका ने 9/11 के हमले के मास्टरमाइंड को जो मारा था वहां पे, तो वो उनको पाकिस्तान के अंदर ही तो मारा था। और अनेकों जितने भी आतंकवादी हैं सारे के सारे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान तो ये है, मैं तो ये कहूंगा, पाकिस्तान तो एक फैक्ट्री है आतंकवादी तैयार करने की। और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी, चाहे फ्रांस में हुआ हमला, इंग्लैंड में हमला हुआ, चाहे भारत में जब हमला था, सारे के सारे तार पाकिस्तान से जुड़े रहते हैं। तो पूरी दुनिया जानते हुए, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने अभी इनको जो है लोन भी दिया है, वो लोन मानवता के खिलाफ है। वो आतंकवाद के लिए होगा, लोगों के शोषण के लिए होगा। परंतु क्या है, ये कुछ देश ऐसे हैं अभी भी, अरे तुर्की जैसा देश जिसके आपदा आई तो भारत सबसे पहले मदद के लिए खड़ा हुआ। और जब अब पाकिस्तान जब आतंकवादियों को खत्म करने की बात हुई, आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो उनके साथ खड़ा, पाकिस्तान जैसे देश के साथ खड़ा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने ऑपरेशन सिंदूर कामयाब किया, उसका एक जो जोश है वो पूरा देश मानता है। तहव्वुर राना की भी छानबीन की जा रही है एनआईए द्वारा। डू यू थिंक दैट जब वो बोलेगा, जब वो पाकिस्तान की पोल खोलेगा, तब पता लग जाएगा कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी जो है, जो सेना है, वो आतंकवादियों को शरण देती है? दुनिया के सामने साफ है। जब हमने कसाब को पकड़ा था तब भी पाकिस्तान के पर प्रूव हुआ को पाकिस्तानी नागरिक था। सारी चीजों के इनके तार जुड़े। और ताबुर राना से पहले जो ना हेडली ने ये सारी चीजें बता, हम जो ना इस तरीके इंडिया के अंदर रहे 11 के हम का जो मास्टरमाइंड है ताबुर राना रहा है। और ताबुर राना पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज ए कैप्टन डॉक्टर की पोस्ट के ऊपर था। पाकिस्तान आर्मी के अंदर नौकरी किया हुआ वहां का सैनिक रहा है। और आईएसआई के अंदर रह के तो सारा का सारा इन्होंने वो जो षड्यंत्र रचा, हिंदुस्तान में ये अनेकों जगह रह के गए हैं। यहाँ के भी बहुत लोगों का पता चलेगा किन किन लोगों से मिले, कहाँ कहाँ इनके स्लीपर सेल हैं और किस किस तरह से उस हमले को अंजाम दिया था। पाकिस्तान तो अभी खुद कह अब भाई नहीं तो 10 साल से हमारे पास नहीं है, 15 साल से हमारे पास नहीं है। अरे भाई तुम्हारे पास अब नहीं है, तुम लोगों ने तो इसको 10 साल की नौकरी के अंदर छोड़ के नौकरी इसको शिफ्ट किया। आईएसआई ने तो इसको वहां पे शिफ्ट किया था। नहीं तो 10 साल के अंदर नौकरी कौन छोड़ रहा है? कोई नहीं छोड़ रहा है। कोई छोड़ रहा बताओ मुझे, कोई अफसर कोई भी छोड़ रहा हो तो। क्योंकि वो सब जो है ना उस तरीके से इसको एक नहीं अनेकों देशों में हमले कराए इन्होंने। कई जगह इन्होंने जो ना अमेरिका के अंदर भी थे ये जो हमले को प्लानिंग देने के लिए, तो वहां पकड़े गए थे। तो ये तो साफ है, ये प्रूव है। और दूसरा साफ, पूरी दुनिया में ये तस्वीरें गई है। पाकिस्तान नंगा हो गया है। पाकिस्तान को कहने के लिए कोई जगह नहीं है। जो आतंकवादियों के जनाजे के अंदर फौज शामिल हो रही है और उनको जो ना राष्ट्रीय सम्मान के साथ आतंकवादियों को जो ना कब्रों में दफनाया जा रहा है, तो वो तो साफ है। परंतु इस दुनिया के अंदर जो ना दोगली वो करते हैं, राजनीति कर रहे हैं, दो तरह की राजनीति करते हैं। एक तरफ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पैसा देते हैं और दूसरी तरफ जो ना आतंकवाद को खत्म करने के लिए बयान देते हैं। सुरेंद्र जी, इंडिया की जो नीति है आतंक को लेकर, वो अब बदल गई है। अब हम डॉसियर्स नहीं भेजेंगे। अगर देश पर हमला होगा आतंकियों द्वारा तो उसको पाकिस्तान द्वारा हमला ही माना जाएगा। क्या कहेंगे इस नीति के बारे में आप? बिल्कुल, जो है ना पहली बार हिंदुस्तान का ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने ये बातें कही हैं। अब जब भी कोई टेरर अटैक होगा तो हम जो है ना हिंदुस्तान के ऊपर हमला समझेंगे, और वो भी पाकिस्तान की तरफ से। ये नहीं किसी और देश को हम टारगेट बना रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। और हमने ये हमले के बाद उनको दिखा भी दिया।
और दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, अब जो ना खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु नदी का पानी बंद करके, उनके कलाकारों को यहाँ हिंदुस्तान में बंद करके, उनके जो व्यापार को यहाँ पे बंद करके प्रधानमंत्री ने चौतरफा अटैक किया है और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और इससे जो है ना ये एक मैसेज गया, कड़े शब्दों में एक संदेश चला गया। और इसके लिए अब आतंकवादियों को नहीं, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की फौज को सोचना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं, जब तक पाकिस्तान की फौज की कमर नहीं तोड़ देंगे ना, तब तक तो ये डटने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये हर 6 महीने बाद में ये करते हैं। पर अब इनको भय जरूर हो गया, अब इनको पता चल गया, इन्होंने जितनी भी चाइना से मिसाइल ली थी वो सारी फुस रह गई हैं, उनको गिरा लिया हिंदुस्तान ने। जितने भी तुर्की से ड्रोन लिए थे सारे भारतीय सेना ने गिरा लिए। यहाँ पे भारतीय सेना का मैं कहूंगा सब तरीके का टेस्ट हो गया है इसका, जो ना मैन, मशीन और मोराल। क्योंकि हमारी मैन, हमारी फौज भी हमारे पास एकदम आज की लेटेस्ट फौज है, आधुनिक फौज है, आधुनिक तकनीकी के साथ है। और जो ना हमारी मशीन, हमारी मिसाइलें जो डीआरडीओ ने, हमारी जो स्वदेशी हथियार थे उनका टेस्ट हो गया है। और जो ना हमारा S-14 का टेस्ट हो गया है, जो परिंदे को भी पर नहीं मारने दिया। और जो ना हमारी फौज का मोराल हमारे देश का और फौज का हाई था। यही चीजें तो लड़ाई में चाहिए। सुरेंद्र जी, अब आप भारत की सेना को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आतंक को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है? मैं पूरे देश के जवानों को भी, भारतीय सेना में जो भी जल, थल और नभ में जितने भी मेरे सैनिक भाई ड्यूटी कर रहे हैं उन सभी साथियों को, और साथ ही जो है ना पत्रकार बंधुओं को भी मैं कहना चाहूंगा, आपका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। देश की जनता को जगाने के लिए जो पुरानी लड़ाई होती थी, उस समय देश की जनता को पता नहीं चलता था। उस समय शहीदों की जो ना पार्थिव शरीर भी नहीं लाए जाते थे, वो भी बीजेपी को ही सहे जाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब शहीदों का जो पार्थिव शरीर आने लगे। उससे जब पता चलता हमारे नागरिकों को, जब हमारा सैनिक शहीद होता है तो उससे देश के अंदर जोश आता है। और पूरे देश के मोटिवेशन से, पूरे देश के जोश के साथ भारतीय सेना का मोराल हाई होता है। तो मैं सब सैनिक साथियों को जो हमारी आज जो खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, उन साथियों को यही संदेश देना चाहूंगा, सबसे पहले हमारे लिए वतन है, और जो ना उसके बाद जो ना हम अपने परिवार की गणना करते हैं। हमारा व्यक्तिगत तो कोई स्वार्थ कभी पूरा होता नहीं है और हम उसमें जाते भी नहीं है। इसी तरह प्रकार मेरे साथियों, बॉर्डर पर जो आप लोगों ने ये देश के अंदर जो चमक और धमक पाकिस्तान को दिखाई है, और मैं तो पीछे कह रहा था, अगर एक बार जो है ना, अगर ये पाकिस्तान नहीं मानेगा तो जो हमारे जो अर्जुन टैंक की गड़गड़ाहट और बोर के धमाके जब देखेगा तो जब हिलेगा। तो वो मौका नहीं आया, आप लोगों के मन में रह गया। लाहौर के अंदर जो है ना जाके चाय पीना, लाहौर के अंदर लंगर चलाना फौजों का, तो जो है ना आगे कभी मौका मिलेगा तो अवश्य ये भी होगा। सुरेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए, ये सारी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।